Hello students, in this video I am going to explain pronoun and its kind. Pronoun and its kind. First of all, what is pronoun? Pronoun is the word that we use on the place of noun. Pronouns are used on the place of a noun. Means pronoun work on the place of a noun. For example, Radha is studying. What is noun here? Noun is Radha. And in place of noun, we will use pronoun. So, we use on place of Radha, we use she. So, it is pronoun. We use pronoun on the place of a noun. Now types. How many types? There are 10 types of a pronoun. First one is personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, and indefinite pronoun. Now I will explain all these. First one is personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल मीन्स जो हमारा खुद का पर्सनल मैटर है, पर्सन के लिए हम यूज करते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. वी कैन यूज ऑन द प्लेस ऑफ पर्सन, वी कैन यूज ऑन द प्लेस ऑफ ए थिंग्स. कौन कौन से हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं? वी, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे. In these examples, we will observe. I am student of class 9th. What is pronoun here? I is pronoun here. And which type of pronoun this one is? This one is subjective case. Because it is on the place of a subject. That's why it is subjective case. Mr. Boss has called you. You. It is on the place of a object. So, it is pronoun, personal pronoun and a objective case. He gave me a pen. In this sentence, he is also pronoun. Me is also pronoun. What is he? He is on the place of subject. So, it is personal pronoun and a subjective case. Me is also personal pronoun and on the place of object, objective case. What are the objective case of all these? I, me, we, I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them. These are the personal pronouns on the place of a object. These are subjective, these are a objective. Next one is possessive pronoun. What is possessive pronoun? Possession. Possession means belonging of a something. किसी चीज का संबंध. Definition of it used to indicate possession means संबंध दिखाने के लिए of pronoun, pronoun का. It comes after the noun. ये किसके बाद आता है? Noun के बाद आता है. और हमारे हैं कौन से पर्सन ये possessive pronoun? Mine, ours, its, his, hers, theirs, yours. These are our personal प्रोनाउन से हमने पोजेसिव प्रोनाउन इनको बनाया है और ये हमारे क्या हैं? These are our possessive pronouns. Example: this house is mine. This house is mine. Here is mine. What is mine here? Mine is possessive pronoun here.
One more example I take here, but this example is not for possessive pronoun. One more thing I want to clear here. This is my house. In this sentence, there is no possessive pronoun, but my house. What is my here? Here is possessive adjective. Mostly students create confusion between both. What is possessive pronoun and what is possessive adjective? Possessive pronoun come alone and possessive adjective come with a noun. Next one is reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? Reflexive pronoun, it is used to refer to the same person. Understand it? It is used to reflect the same person. Means I do this work myself. Myself is reflecting to the me. Because the same person, I, myself. Same person as the subject of the verb in a sentence. Or it comes after the verb. What is the place of it? It comes after the verb in a sentence. Now, these are the reflexive pronouns. Myself, ourselves, yourself. It means I, myself, we, ourselves, he, himself, her, herself, it, itself, they, themselves. Like this. In example we see, she is very proud of herself. She. And for she, what is the reflexive pronoun? Herself. He baked the cake himself. And for he, what is the reflexive pronoun? Himself. Next one is emphatic pronoun. Emphatic pronoun is also like reflexive pronoun. But what is the difference? There is difference of use only. How to use reflexive pronoun, how to use emphatic pronoun. Emphatic pronoun. Emphatic pronoun, it is used to emphasize. क्या emphasize करने के लिए? On the action done by personal pronoun. जो पर्सनल प्रोनाउन वर्क करता है, एक्शन करता है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। पर्सनल प्रोनाउन कैसे वर्क करता है? जैसे मैं ये कहूँ, मैंने पिछले उसमें एग्जाम्पल दिया था आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि इसमें हमने माई सेल्फ जो है वो लास्ट में यूज़ किया। यहाँ पे मैं ये कहूँ आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, तो मैंने माई सेल्फ को कहाँ यूज़ किया? आई के साथ यूज़ किया। उसका प्लेस चेंज हो गया, वो पर्सनल प्रोनाउन के साथ आ गया, आई के साथ आ गया है, उसको मैंने लास्ट में यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है, ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। ये किसके इमीडिएट आता है? सब्जेक्ट के बाद में। आई माई सेल्फ डू, तो आई इज अवर सब्जेक्ट, आई के बाद मैंने माई सेल्फ को बोला, तो इसकी प्लेस कहाँ है? ये सब्जेक्ट के बाद आता है। अब हैं कौन से हमारे? वही सेम थिंग है। सेम जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे वो सारे हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं, ओनली डिफरेंस इन यूज। आई माई सेल्फ, वी अवर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, they themselves, like this. Example, he himself offered to help me. He is our subject और इसके पोजीशन हमने क्या की? It comes immediate after the subject. तो ये देखो, he हमारा क्या है यहाँ पे? What is he? He is our subject. Subject के बिल्कुल बाद में आया है himself. तो himself हमारा क्या है? यहाँ पे emphatic प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? ये किसके साथ है? बिल्कुल ये हमारे एक्शन को जो हमने डन किया है, जो पर्सनल प्रोनाउन ने जो एक्शन किया है उसको प्रेशराइज कर रहा है, उसके ऊपर एम्फेटिक दबाव डाल रहा है। आई माई सेल्फ डोंट वॉन्ट टू गो देयर। आई हेयर अगेन, आई इज अवर सब्जेक्ट एंड विद सब्जेक्ट आई माई सेल्फ डोंट वॉन्ट टू गो देयर। सो माई सेल्फ इज reflexive, myself is not reflexive, emphatic pronoun,
with a I. Next one is interrogative pronoun. इंटेरोगेटिव का नाम हमारे माइंड में आते ही हमें क्या, हमारी एक इमेज बन जाती है सामने, वो क्या है, दैट इज क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव इट मीन्स हमें क्वेश्चन पूछना है अगले से, इंटेरोगेशन देना है. मीन्स इट इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन. क्या चीज़ करनी है कि हमें क्वेश्चन पूछना है उससे. क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. कौन कौन से होते हैं वो हमारे WH वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पुट करते हैं. हु, whom, whose, when, which, what, etc. Which of these dresses is yours? Which of these? तो यहाँ पे which क्या है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. whose house, हमारा whose क्या है, whose हमारा क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. whose house is a this. अब फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एक और वर्ड यूज किया है हमने yours. हम इससे पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये हमारा क्या है, yours. ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है. yours, your के साथ अस लगा, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये अकेला स्टैंड करता है. इसके साथ में हमारा जो है नाउन यूज नहीं होता है. और ये एग्जाम्पल whose house is a this. तो यहाँ पे जो whose है, which है और जो whose है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स किसी चीज़ को दर्शाना. हम किसी चीज़ को कैसे दर्शाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करूँगी, दिस इज ए मार्कर. तो दिस किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मार्कर को. तो दिस यहाँ पे क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव इट इज यूज टू पॉइंट पर्सन और थिंग. मीन्स किसी पर्सन को और किसी थिंग को जब हम पॉइंट करते हैं देन वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. मैंने इसको पॉइंट किया, दिस इज मीन्स मैं इसको इंडिकेट कर रही हूँ. तो दिस हमारा क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस, दैट, दीज, दोज, वन, सच, सेम एंड सो ऑन. इन एग्जाम्पल्स, दिस इज माई डायरी. What is this here? Demonstrative pronoun. That is their car. What is that here? Demonstrative pronoun. We should make people our friends and keep them so. What is them so? So is also our demonstrative pronoun. So, them so. We should make people our friends. हमें अपने दोस्त बनाने चाहिए and keep them so. और उनके साथ भी वैसे ही हमें रहना चाहिए. Next one is relative pronoun. What is relative pronoun? Relative means what is relation? Relation between two words, two sentence, two clause, two phrase. हमें relation दिखाना है और वो किसकी हेल्प से, relative pronoun. It is used to join sentences. किस किस को join करता है relative pronoun? Sentences, phrases and clauses. Sentence, phrase and clause. And for what is the purpose of this? To join. उसको इकट्ठा करना. It introduces noun clause and relative clause. ये हमारा किसको इंट्रोड्यूस करता है, relative pronoun, noun clause और relative clause को. Who, that, which, whose, whom, what, etc. These are the words we use as a relative pronoun. The pen that you gave me is lost. The pen that, it is the relation between the pen. कौन सा पेन, you gave me is lost. जो आपने दिया वो गुम हो गया. और इस पेन का इससे क्या रिलेशन कैसे हमने स्थापित किया यहाँ पे, with the help of a that. And what is that here? That is our relative pronoun. This is the bus which goes to Nainital. This is the bus goes to Nainital which
What is which here? Which is our relative pronoun. Next one is distributive pronoun. Distribute means to distribute something. Distribution means जिसको हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं. कैसे डिवाइड करते हैं हम? ज़्यादा में से, ग्रुप में से, सिंगल को, या कोई वन ऑब्जेक्ट है उसको सेपरेट करके. देन व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट. व्हाट इज द इंडिकेशन? पर्सन और थिंग दैट आर टेकन एज ए होल और इन सेपरेट ग्रुप. या तो हम उसको होल के रूप में लेंगे, एक कंबाइन के रूप में लेंगे, और या सेपरेट ग्रुप के रूप में. इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब. इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब. ये आपको ध्यान रखना है. ये आपको कॉमन एरर्स में भी ये बहुत ज़्यादा एक मिस्टेक मिलती है कि सेंटेंस को बना दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में आपको प्लूरल वर्ब दे दी जाती है और उसमें एरर फाइंड आउट के लिए आता है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ आपको जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ करनी है. नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, दीज आर द सच टाइप ऑफ वर्ड्स we use in a distributive pronoun. Each of you gets a prize. Each of you. आप यहाँ पे देख सकते हैं you में अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? you के साथ. you के साथ get आना चाहिए. बट मैंने क्या यूज़ किया है यहाँ पे? gets. मैंने सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है. each of you मीन्स हाफ में से हर कोई. एक ये सिंगल को इंडिकेट कर रहा है. दैट्स वाई आई यूज हेयर अवर सिंगुलर वर्ब ए प्राइज. आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज वर्केबल. वी हैव टू ऑप्शंस एंड आइदर ऑफ द टू, दो में से एक एक्शन को हमें करना है जो वर्केबल है. आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज ए वर्केबल. तो हमने टू ऑप्शन में से क्या यूज किया है? आइदर. तो आइदर हमारा क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. और वर्ब कितने हैं हमारे? देखो टू ऑप्शंस हैं. बट जो वर्ब यूज की है हमने वो क्या है? वर्ब इज ए सिंगुलर वर्ब है. टू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं है. ऑप्शंस तो ज़्यादा होते तो हम आर यूज़ करते हैं यहाँ पे, बट हमने इज यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ किया है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेसिप्रोकल और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. इट मीन्स हमारे सेंटेंस के अंदर टू सब्जेक्ट्स होंगे और उनके अंदर एक रिलेशनशिप होगी. वो म्यूचुअल रिलेशनशिप हो सकती है और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो सकती है. These are the words each other or one another. Each other and one another. These are the two group of words we use as reciprocal pronoun. Each other for we use only for two, and one another we use for more than टू, दो से ज़्यादा. अगर हमें किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दो में करना है तो हम यूज़ करेंगे ईच अदर. अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है वन मोर देन टू, देन वी विल यूज़ वन अनदर. ये आपको एक कॉमन मिस्टेक मिलती है. ये कॉमन एरर में बहुत ज़्यादा मिलती है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोर देन टू एंड वी यूज़ ईच अदर. आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाता है. तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से ध्यान रखना है आपको कि ईच अदर जो है वो टू के लिए यूज होगा और वन अनदर है वो मोर देन टू के लिए यूज होगा. द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर. यहाँ पे एक डायरेक्ट इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि यहाँ पे जो ब्रदर्स हैं वो टू ब्रदर्स हैं एंड दे लव टू ईच अदर. वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? ईच अदर, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर ओनली टू. वी शुड लव वन अनदर. हमें वन अनदर, वी शुड लव, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए. मीन्स वन अनदर मीन्स बहुत, सबसे, आपस में. मीन्स मोर देन टू. इफ मोर देन टू देन वी विल यूज इफ वी हैव मोर देन टू देन वी विल यूज वन अनदर.
Next one is indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Name is, with the name we are getting indication. Indefinite pronoun means कोई चीज़ जो definite नहीं है. It means जो कोई चीज़ निश्चित नहीं है. It is used to refer to person or a thing in a general way. किसी भी जनरल वे में हम कहते हैं कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. इट डजेंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर पर्सन. किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट नहीं करता है. वन, नन, वन, नन, फ्यू, एनी, मैनी, ऑल, सम, एनीवन, everyone, somebody, anybody, nobody. These are the words, such type of the words we use in a indefinite pronoun. One must abide by the rules. One must. What is the one here? One is here indefinite pronoun. One must abide by the rules. मतलब हर किसी को रूल से अबाइड होना चाहिए. Means one. One is indefinite pronoun. Anybody can do that. What is anybody? Anybody is our indefinite pronoun कि कोई भी कर सकता है do that. कोई निश्चित नहीं है कि आप करेंगे, you do it, they do it, he do it, she do it. No. Anybody, कोई भी. It means that is not certain. वो निश्चित नहीं है, तो वो क्या है हमारा indefinite pronoun है. Some are born great. Some. कोई इंडिकेशन नहीं है कि कौन born great हुआ है. Some. कुछ लोग महान ही पैदा होते हैं. तो then some is our indefinite pronoun. So it is the explanation of pronoun and its kind. There are 10 types of kind, and I have explained with common errors in full explanation. I hope you will understand everything. Thank you.